Hello children, welcome once again in your maths class. I am Poonam Bagga and we are studying class 8th maths chapter 9 algebraic expressions and identities. In our previous video we completed exercise 9.1 where we learned to add or subtract any two algebraic expressions. Now we want to learn how to multiply algebraic expressions. For this, in this segment we will discuss how to multiply any two or more monomials, and then accordingly we will be doing exercise 9.2 also. Now first of all, let us understand that why we need to multiply monomials. Let us take one real life situation where we have a rectangle, say with length L and breadth B. Now to find the area of this rectangle we need to multiply this length and breadth, and here in this case these are two monomials with variables L and B, and so we need to multiply these two monomials to get the area of this rectangle. Now suppose if we reduce the breadth and make it half and increase the length and just double it, then the new length will be 2L and the breadth will be half of the previous one, and then now we get two new monomials 2L and B by 2, and now again to find the area of this rectangle we need to multiply these two new monomials. Similarly, in your higher classes you will see many real life situations can be represented by using algebraic expressions, and there we need to multiply also two or more algebraic expressions. So for higher class you need to make your base strong in class 8th itself. So in today's segment we will be discussing how to multiply two monomials. With this, make your concepts clear and your base very much strong. Okay. So let us understand how to multiply two monomials. The simple rules are: first one, product of two monomials is equal to product of their numerical coefficients into product of their variable parts. Suppose we have two monomials, say 5x and 6x. ठीक है, तो पहले आप यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे? न्यूमेरिकल पार्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स. 5 इंटू 6 ये हो गए न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल पार्ट्स x इंटू एक्स. इन दोनों मोनोमियल्स का आप नंबर्स जो हैं कोएफिशिएंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ ये वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे. गेटिंग द पॉइंट? देन if x is a variable and m and r positive integers, then x raised to power m into x raised to power n is equal to x raised to power m plus n. This is very important, बहुत important है. जैसे यहाँ पर आप देखिए 5 6 तो हो गया 30, पर अब इनको कैसे मल्टीप्लाई करें? यहाँ पर आप देखेंगे x की पावर्स को देखना होगा. यहाँ x की पावर विजिबल नहीं है, यानी x की पावर है 1 दोनों ही केस में. पावर 1 का मतलब हुआ कि वो वेरिएबल एक ही बार लिखा है. x की पावर 1 का मतलब x को एक ही बार लिखना है, तो एक्चुअली दिस इज इक्वल टू x, एक ही बात हुई. तो जब भी पावर मिसिंग दिखे इसका मतलब है पावर 1. और अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट है वहाँ पर ये पावर्स प्लस हो जाएंगी, 1 + 1 हो जाएगा. सो दिस विल बी नथिंग बट 30 और x रेज टू पावर 2, और पावर 2 को हम रीड करते हैं x स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म में रीड करेंगे, इट विल बी 30x स्क्वायर. तो पावर्स यहाँ पर ऐड होती हैं. मान लीजिए हमारे पास है x रेज टू पावर 5 इंटू x रेज टू पावर 7, तो हम क्या करेंगे? पावर्स को ऐड कर देंगे, 5 + 7, दिस विल बी x रेज टू पावर 12. गेटिंग इट? सिमिलरली इफ वी हैव x रेज टू पावर 2 इंटू x रेज टू पावर 3, तो ये क्या हो गया? x रेज टू पावर 2 + 3, दैट इज x रेज टू पावर 5. और अगर आप समझना चाहें कि ऐसे क्यों हो रहा है तो समझिए आप, x रेज टू पावर 2 का क्या मतलब हुआ? x इंटू एक्स, यही मतलब हुआ. x रेज टू पावर 2 मतलब x को x से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. हमने पढ़ा था ना स्क्वायर चैप्टर में, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, उसमें यही तो बात थी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर मतलब उसको अपने आप से ही 2 बार मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पर भी x स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? x को x से ही 2 बार मल्टीप्लाई करना है, सो इट इज़ x स्क्वायर. और फिर x क्यूब का मतलब क्या हुआ? x को x से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, सो दिस विल बी x इंटू एक्स इंटू एक्स. और अब आप देखिए x कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखा है ना, तो वही तो हो गई x रेज टू पावर 5. वही काम हम कर रहे हैं यहाँ पे. अगर पावर्स अलग अलग हों तो
मल्टीप्लाई हो रहा है और बेस तो सेम ही है x और x, तो यहाँ पर x रेज टू पावर 2 + 3 हो जाएगा। पावर्स ऐड हो जाएंगी जब वेरिएबल सेम हो, माइंड इट द वेरिएबल शुड बी द सेम। तो ये हो गया x रेज टू पावर 5। और कैसे हो रहा है, एक्स स्क्वायर आपने देख लिया, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया x को। इसी तरह से एक्स क्यूब मतलब x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया अपने आप से ही, तो अपने आप ही x रेज टू पावर 5 हो गया। इस केस में भी आप x को 5 टाइम्स लिखिए, देखिए 1 2 3 4 और 5, x रेज टू पावर 5। और फिर x को आप 7 बार लिखिए, चलिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। काउंट कीजिए कितनी बार हो गया ये। येस, इट इज़ इक्वल टू x रेज टू पावर 12। और ये हम ऐसे करें तो कितना डिफ़िकल्ट और कम्बसम हो गया है। तो इसी काम को ईजी कैसे करेंगे, सिंपल है, ये पावर्स को आप ऐड कर लीजिए और आपको अपने आप ही मिल जाएगा इन दोनों एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है। तो जब भी हम दो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेम वेरिएबल को अगर हम अलग अलग पावर्स में ले रहे हैं तो वो पावर्स ऐड हो जाएंगी। माइंड इट, द वेरिएबल शुड बी द सेम। देन व्हाट एल्स हैज़ बीन गिवन, द प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल्स विद लाइक साइंस। लाइक साइंस मतलब दोनों का साइन सेम हो, प्लस प्लस हो या फिर दोनों माइनस माइनस हो, तब तो आपको जो आंसर मिलेगा प्रोडक्ट वो होगा पॉजिटिव। एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल्स विद अनलाइक साइंस इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, लाइक साइन मतलब अगर दोनों ही प्लस में है नंबर्स या एक्सप्रेशंस, तो जो प्रोडक्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। अगर दोनों ही एक्सप्रेशन नेगेटिव हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी जो आंसर आएगा प्रोडक्ट वो पॉजिटिव होगा। व्हेन द साइंस आर लाइक, सेम है, देन द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव हैं तब तो पॉजिटिव आएगा ही, दोनों नेगेटिव हैं तब भी पॉजिटिव आएगा। और अनलाइक साइन हो, इसका मतलब एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, तब आपका आंसर नेगेटिव आएगा। द साइन इज नेगेटिव हियर। अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे, देन इट विल बी वेरी मच क्लियर। लेट अस टेक सम एग्जाम्पल्स हियर। x इंटू 3y। अब आप देखिए यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है 1। तो आप न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स को अलग से मल्टीप्लाई करिए और फिर x इंटू वाई। नाउ 1 इंटू 3 इज 3। और अब क्या यहाँ पर पावर्स ऐड होंगी या नहीं, देखिए आप यहाँ पर वेरिएबल सेम नहीं है तो पावर्स ऐड नहीं होंगी। पावर्स कब ऐड होती हैं, जब वेरिएबल सेम हो। यहाँ है x, यहाँ है y, तो ये एज इट इज़ रहेंगे x इंटू वाई। देखिए आप, जब हमने x इंटू एक्स किया था तब तो पावर्स ऐड होके ये x स्क्वायर हो गया था, और अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपल x y लिख रहे हैं, पावर्स को ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि वेरिएबल्स जो हैं वो अलग अलग हैं। इसको ध्यान रखिएगा, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स टू बी लर्नड नाउ एट दिस लेवल। देन 5x इंटू 3y। अब यहाँ पर देखिए आप, फिर से पहले हम कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 3 और वेरिएबल पार्ट्स को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई। नाउ दिस विल बी 5 3 ज़ा 15 और xy, ठीक है। देन हियर 5x इंटू माइनस 3y, बताइए क्या हो जाएगा, 5 इंटू माइनस 3 हो गया ये, और साथ ही साथ ये x इंटू वाई। तो हम कोएफिशिएंट्स को अलग से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वेरिएबल्स को अलग से। दिस विल बी नाउ माइनस 15xy। देखिए आप, जब एक बार माइनस आ रहा है तो हम यहाँ ले रहे हैं माइनस, अनलाइक साइन है, अलग अलग साइन है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। प्लस इंटू माइनस इज माइनस हियर, रिमेंबर दिस। देन 5x इंटू 4x स्क्वायर। सो हियर 5 इंटू 4 करेंगे, कोएफिशिएंट्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर। 5 4 ज़ा इज 20। और अब आप देख रहे हैं कि वेरिएबल सेम है, सो नाउ वी कैन ऐड अप द पावर्स। हियर यू हैव द पावर 1, हियर यू हैव द पावर 2, सो दिस विल बी x रेज टू पावर 3 which we say as x cube. So the answer is 20x cube. यहाँ याद रखिएगा, अगर पावर 2 है तो इसे हम रीड करते हैं स्क्वायर, x स्क्वायर, इट इज़ x स्क्वायर। और अगर पावर 3 है तो इसे हम रीड करते हैं x क्यूब, ये ध्यान रखिएगा। और फिर अगर हमारी पावर है 4 तो हम बोलते हैं x रेज्ड टू पावर 4, ठीक है। अब कोई अलग से नाम नहीं है, स्पेसिफिक नेम नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से पावर 5 हुई, 6 हुई, तो हम क्या बोलेंगे, x रेज टू पावर 5, x रेज टू पावर 6, और ऐसे आगे चलेंगे।
पावर 2 के लिए हम स्क्वायर वर्ड यूज़ करेंगे, पावर 3 के लिए क्यूब वर्ड यूज़ करेंगे. दीज आर वेरी बेसिक लिटिल कॉन्सेप्ट्स. नाउ हियर अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई. तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट्स को 5 इंटू -4 और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल्स को x इंटू एक्स वाई जेड. यहाँ से x और यहाँ से x y z. ठीक है. नाउ दिस विल बी इक्वल टू -20 एज यू कैन सी. 5 इंटू -4 इट विल बी -20. और यहाँ पर आप देखेंगे ये x यहाँ दोनों जगह सेम वेरिएबल है तो पावर्स ऐड अप हो जाएंगी. x इंटू एक्स इट विल बी x रेज टू पावर 2, x रेज टू पावर 2 और y और z ऐसे ही रहेंगे. ठीक है. ये अलग वेरिएबल्स हैं तो इनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी. गेटिंग इट. नाउ वी हैव सम मेजर पॉइंट्स टू रिमेंबर. कई बार स्टूडेंट्स को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बेसिक रूल्स में कन्फ्यूजन हो जाता है. उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को एक बार क्लियर कर लेते हैं. रिमेंबर, वाइल एडिंग मोनोमियल्स एंड वाइल मल्टीप्लाइंग मोनोमियल्स, ये कुछ बातें हैं जिन्हें हम ध्यान रखेंगे. कोएफिशिएंट्स ऑफ ओनली लाइक टर्म्स आर एडिड. कोएफिशिएंट्स ऐड कब होते हैं? जब टर्म्स लाइक हों. और मल्टीप्लिकेशन के केस में टर्म्स अगर लाइक हो या अनलाइक हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता. कोएफिशिएंट्स को हम हमेशा ही मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए आप अभी हमने जब एग्जांपल्स किए तो यहाँ पर तो आप देखेंगे कोई भी टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं है. ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, यहाँ पर x है, ये 4xyz है. तो लाइक टर्म्स तो नहीं है पर तब भी हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना कोएफिशिएंट्स को. देखिए आप हर केस में कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो द बेसिक डिफरेंस इज while adding monomials coefficients of only like terms are added, जबकि in case of multiplication coefficients of both like and unlike terms are multiplied. कोई like terms हो तब भी multiplied होंगी जो coefficients है, unlike terms हो तब भी हम coefficients को multiply करेंगे. ये example देख लीजिए आप 3x plus 4x. यहाँ पर अब हम प्लस कर रहे हैं तो सिर्फ coefficients प्लस होंगे. देखिए आप 3 और 4 ये ही प्लस होंगे और वेरिएबल आप देख रहे हैं सेम है तो ये लाइक टर्म्स हैं तो इसीलिए यहाँ पर ये ऐड हो पाएंगी. और आंसर क्या आएगा? 3 + 4 इट विल बी 7 एंड देन x. ठीक है. लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 3 इंटू 4 करेंगे और फिर x इंटू एक्स करेंगे. तो ये आपका हो गया 3 4 = 12 और x रेज टू पावर 2 दैट इज़ 12x² हो गया. पावर्स ऐड हो गई, सेम वेरिएबल है. तो ये बेसिक डिफरेंस है यहाँ पर एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में मोनोमियल्स के केस में. अब 3x + 4y, क्या हम यहाँ पर कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लिख देते हैं 7xy जो कि है गलत. यहाँ पर ये अनलाइक टर्म्स हैं. यहाँ वेरिएबल है x और यहाँ है वेरिएबल y. तो ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते. तो इसका आंसर यही रहने वाला है 3x + 4y. ऐसे ही छोड़ना होगा, इनको आप ऐड नहीं कर सकते, 7 नहीं कर सकते यहाँ पर आप. जबकि यहाँ पर देखिए आप अनलाइक टर्म्स हैं फिर भी कोएफिशिएंट्स तो मल्टीप्लाई होंगे ही और ये रिजल्ट हो जाएगा 12xy. 3 4 = 12 और x इंटू वाई विल बी xy. क्योंकि वेरिएबल्स यहाँ अलग हैं तो पावर्स ऐड नहीं होंगी. तो ये बेसिक छोटे छोटे डिफरेंस हैं जो दिमाग में क्लियर कर लीजिए आज ही अभी ही. ठीक है. नाउ वी हैव वन मोर डिफरेंस. Take care of sign this time. While adding, plus and plus is sum with plus sign. देखिए आप जैसे हमारे पास है 5x + 3x. ठीक है. तो आप जब इनको प्लस करेंगे, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों ही प्लस में है, तो जो आंसर आएगा 8x वो भी पॉजिटिव होगा. ये तो क्लियर है. इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के केस में भी अगर दो प्लस मोनोमियल्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर भी पॉजिटिव होगा. जैसे 5x इंटू 3x करेंगे तो 5 3 = 15 और x². ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. यहाँ तक तो क्लियर है. देन माइनस एंड माइनस इज अगेन सम विद नेगेटिव साइन. मान लीजिए हमारे पास ये केस है -5x + -3x. ये देख रहे हैं आप. तो ऐसे केस में ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है. तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा -8x. वेरिएबल तो एक x ही रहेगा. यहाँ पर लाइक टर्म्स हैं तो हम ऐड कर पा रहे हैं और -5 + -3 क्या होता है? -8x. तो जब हम दो माइनस टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो आंसर भी माइनस में ही आएगा. लेकिन प्रोडक्ट के केस में ऐसा नहीं है. जब हम दो माइनस टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट आपका हो जाएगा पॉजिटिव. यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है. -5x को मल्टीप्लाई करेंगे -3x से तो माइनस माइनस हो गया प्लस. 5 3 = 15
और साथ में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मैम ये तो दोनों ही माइनस के हैं तो आंसर माइनस आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई के केस में ऐसा नहीं है, ऐसा होता है सिर्फ एडिशन के टाइम पे। मल्टीप्लाई के केस में माइनस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। इसको आप बोल सकते हैं माइनस माइनस प्लस, बोलते भी हैं। और यहाँ पर प्लस प्लस तो प्लस होगा ही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब अगर एक टर्म पॉजिटिव हो और एक टर्म नेगेटिव हो तो आप क्या करते हैं, एडिशन के टाइम एक्चुअली आप डिफरेंस निकालते हैं दोनों नंबर्स का, और फिर साइन आता है लार्जेस्ट वैल्यू का। जो भी दोनों में से बड़ा होता है बड़े नंबर का साइन आता है, बड़े एक्सप्रेशन का साइन आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए 5x प्लस माइनस 2x अगर हम कर रहे हैं तो क्योंकि लाइक टर्म्स हैं तो हम यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। 5 माइनस 2 इट विल बी 3 और साथ में x तो आएगा ही, लेकिन अब क्योंकि बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है तो ये प्लस 3x ही रहेगा ना। लेकिन जब हम इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इंटू माइनस 2x यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 इंटू माइनस 2 करेंगे आप और फिर साथ में x स्क्वायर हो जाएगा। दिस विल बी माइनस 10x स्क्वायर। तो कई स्टूडेंट्स को यहाँ कन्फ्यूजन होती है कि मैम साइन तो यहाँ पर बड़े नंबर का नहीं आया, बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आना चाहिए था। ये गलत कॉन्सेप्ट है आपका। मल्टीप्लाई के टाइम पर अगर प्लस को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस से तो बड़ा नंबर चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर नेगेटिव ही आएगा। मेक दिस वेरी मच क्लियर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्लस और माइनस टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस। ये कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आज ही क्लियर कर लीजिए। नाउ वी विल लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई 3 और मोर मोनोमियल्स। यहाँ पर आप देखेंगे 3 मोनोमियल्स हैं तो इन्हें कैसे मल्टीप्लाई करना है। एक तरीका तो ये है कि पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको एक नया मोनोमियल मिल जाएगा और फिर उससे आप थर्ड वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऐसा करके देखते हैं। 2x इंटू 5y ये पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर 7z को कर लेंगे। दिस विल बी 5 2 ज़ा 10 xy इंटू 7z। अब यहाँ पर 10 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, नंबर्स पहले, और फिर xy को मल्टीप्लाई कर लीजिए z से। सो दिस विल बी 7 10 ज़ा 70 और ये हो गया xyz। क्लियर। तो हमने 2 मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करके पहले एक नया मोनोमियल क्रिएट किया और उससे हमने ये थर्ड वाले को मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी 2 मोनोमियल्स पहले ले सकते हैं। आप चाहें तो पहले 2x और 7z को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब भी आपको जब आप प्रोसीड करेंगे सेम आंसर आएगा। या आप पहले 5y और 7z को मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर आप जो आंसर आएगा उसको 2x से मल्टीप्लाई करिए, तब भी आपको सेम आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर एसोसिएटिव रूल फॉलो होता है, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के केस में भी। देन नाउ हियर वी हैव अगेन 3 मोनोमियल्स वी हैव टू मल्टीप्लाई। आप एक तरह से और भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तीनों को एक साथ ही लेकर चलते हैं। कैसे? 4 इंटू 5 इंटू 6। एक बार में 2 लेने की बजाय तीनों को एक साथ भी लेके चल सकते हैं। तीनों एक साथ ले लिए और यहाँ पर आप देखिए x वालों को एक साथ ले लीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ से x, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स क्यूब एक साथ ले लिए। अब y सबके एक साथ ले लेते हैं, y स्क्वायर y क्यूब, तीनों को एक साथ लिख लिया। नाउ वी सिंपली नीड टू मल्टीप्लाई। Here you have 5 6 are 30 and 30 into 4 it is 120. Then you can multiply here by adding the powers. Same variable है, देखिए यहाँ से यहाँ तक सेम वेरिएबल है तो पावर्स ऐड हो सकती हैं। 3 + 2 plus here you will have 1. So 3 + 2 + 1 it is 6. और यहाँ पर भी पावर्स आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा y raised to power 6 and the answer is 120 x raised to power 6 y raised to power 6 again. So in this way we have multiplied 3 monomials. Now on this basis we can do some examples also. This is example 3 from your book. Complete the table for area of a rectangle with given length and breadth. यहाँ आप देखेंगे कुछ rectangles की length और breadth दी हैं और हमें area find out करना है और area तो हमें पता है it is length into breadth. So simply we have to multiply actually these two monomials. ये है length 3x और breadth है 5y तो area क्या होगा? Length into breadth. This will be 5 3s are 15 और साथ में आ जाएगा xy. Got it?
very easy. Here again this is the length and this is the breadth. For area we will multiply 9y हो गया length into breadth is 4y square. बताइए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट्स को जो है 9 और 4, 9 into 4 और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे y और y स्क्वायर. नाउ 9 4 is 36 और y की पावर्स ऐड हो जाएंगी 2 plus 1 it will be 3. So the answer is 36y cube. Got it? Here again we will multiply this length and this breadth to get the area. 4ab into 5bc. बताइए क्या आंसर आएगा? पहले आप कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए. 4 into 5 it is 20 and then a is single so a will be as it is. और यहाँ पर b देखिए आप दोनों ही टर्म्स में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 1 plus 1 it will be b square and then we have the variable c here. Let me write it separately. It is 20a. So the answer is 20a b square c. This much is the area in this case. Then 2l square m and 2l m square. तो area find out करना है. ये है length, ये है breadth. Multiply length into breadth will be the area. So 2l square m into 2l m square. पहले हम नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 2 ये हो गया 4 और अब l को मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ है पावर 2, यहाँ है पावर 1 तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. वी विल राइट हियर l रेज टू पावर 2 plus 1 और इसी तरह से m की पावर्स ऐड होंगी m रेज टू पावर 1 plus 2. यहाँ पर पावर है 1, यहाँ है पावर 2. दिस विल बी 4l क्यूब m क्यूब. पावर 3 को हम रीड करते हैं क्यूब के फॉर्म में. 4l cube m cube. This is the area with respect to the length and breadth given here. Got it? We have one more example. Find the volume of each rectangular box with given length and breadth and height. अब की बार हमें length, breadth और height दी है और क्या निकालना है? Volume. Now what is the volume of a cuboid? Can you tell me? A rectangular box is called a cuboid and if you want to see how it looks somewhat like this. This is a rectangular box. ठीक है, जिसमें हमें दी हुई है लेंथ, ब्रेथ और हाइट. तो वॉल्यूम कैसे मिलेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स और अ क्यूबॉइड. सो वी राइट हियर वॉल्यूम is given by length into breadth into height. So in first case length is 2ax, breadth is 3by and height is 5cz. So the volume in the first case it will be 2ax into 3by into 5cz. बताइए क्या आएगा? नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए. You have 2 3 6 एंड 6 5 30. ये तो हो गया 30. फिर आप देखिए a, b और c इनको एक साथ लिख लेते हैं. a, b, c और x, y, z इनको एक साथ लिख लेते हैं. So this is the volume. Got it? Then next in second case we have length, breadth and height. Length is m square n. Then n square p is your breadth and height is p square m. मल्टीप्लाई कीजिए. जहाँ जहाँ m है उनको देखिए आप. यहाँ पर m स्क्वायर है और यहाँ पर m है तो ये पावर्स आपस में इनकी ऐड हो जाएंगी. मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेस सेम हो उनकी पावर्स ऐड होती हैं. ऐसे ही यहाँ पर n है और ये n स्क्वायर है और फिर यहाँ पर p है और ये है p स्क्वायर तो इनकी पावर्स ऐड करते हुए हम लिखेंगे इनको. दिस विल बी m रेज टू पावर 2 plus 1. Then n raised to power 1 plus 2. I hope you are easily able to see here and connect here. Then p raised to power 1 plus 2 again. So here the volume is m cube, n cube and p cube. This is the volume in this second case. Next we have part 3. Again we have to find the volume. How to find it? Length is 2q, breadth is 4q and height is 8q cube. First we multiply the coefficients. Numbers multiply करेंगे 2 into 4 into 8 और फिर हम multiply करेंगे q
Q and Q cube. बताइए. Here you will see 2 4s are 8, 8 8s are 64. Yes. And then the variable is same. Q है तो आपस में यहाँ पर powers add up हो जाएंगी. 3, 4 और 5. ये हो गया Q raised to power 5. Got it? Next we now start exercise 9.2 from your book. This is the first question. Find the product of the following pairs of monomials. यहाँ पर हमें monomials दिए हैं, pair form में दिए हैं, दो monomials, उनका product find out करना है. Product क्या मतलब हुआ? जब हम दो expressions को multiply करते हैं, जो answer आता है उसे हम कहते हैं product. तो यहाँ हमें multiply करना है. Product word से आपको clear होना चाहिए mind में कि हमें ये दो expressions multiply करने हैं. Now 4 into 7p. बताइए क्या होगा? Yes, it's very easy. 4 7s are 28 और साथ में p. Very easy. Minus 4p into 7p. बताइए. Minus 4 into 7. It is minus 28 and p into p is p square. Very easy again. Now minus 4p into 7p cube. Minus 4 को आप 7 से multiply करेंगे. It's minus 28. और अब आप देखिए p यहाँ पर भी है और यहाँ भी है, तो दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी. मल्टीप्लाई के केस में पावर्स ऐड होती हैं. ये हो गया p स्क्वायर और साथ में आएगा q. तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं और वेरिएबल सेम होता है तो उसकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, और जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तब वेरिएबल सेम रहता है. जब हम लाइक टर्म्स को एक साथ लेते हैं वहाँ पर पावर्स ऐड नहीं होती हैं, वेरिएबल एज इट इज़ रहता है. नाउ हियर मल्टीप्लाई 4p क्यूब एंड देन माइनस 3p, इनको मल्टीप्लाई करना है. नेगेटिव टर्म को हम ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं और फिर लिखते हैं. देखिए अब आप 4 इंटू माइनस 3 इट इज़ माइनस 12, और अब p की पावर क्या हो जाएगी? 3 यहाँ है और यहाँ पर कोई पावर नहीं दिख रही, मतलब 1 है, तो 3 + 1 ये हो गई p रेज टू पावर 4. गॉट इट? देन 4p इंटू 0, किसी भी एक्सप्रेशन को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा. सो द आंसर इज 0 हियर. Now we take question number 2. Find the areas of rectangles with the following pairs of monomials as their lengths and breadths respectively. तो यहाँ पर आप देखेंगे पेयर्स दिए हैं मोनोमियल्स के. ये फर्स्ट वन तो हो गया लेंथ रेक्टेंगल का, और सेकेंड वन दिया है ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया. व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो एक्चुअली हमें लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करना है, या कह लीजिए हमें इन मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है. We write them here again. This is the length in the first case, this is the breadth, and now area is L into B. So this will be simple. P into Q will be PQ square units. Then 10m into 5n. ये हो गया आपका area. बताइए 10 into 5 it's 50 और mn. बस पहले नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं और फिर वेरिएबल्स. अगर सेम वेरिएबल है तो पावर्स ऐड करनी है, सेम वेरिएबल्स नहीं है, अलग अलग हैं, तो दोनों को ऐसे ही लिख देना है. क्लियर एंड सिंपल. देन अगेन 20x स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर. नाउ फर्स्ट मल्टीप्लाई द नंबर्स. 20 इंटू 5 इट इज़ 100. और अब आप देखिए वेरिएबल्स अलग अलग हैं तो पावर्स ऐड नहीं होंगी, एज इट इज़ दोनों को ही लिख दीजिए. x स्क्वायर एंड देन y स्क्वायर. हियर अगेन लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हो गया एरिया. 4 3 12 हो गया. और अब आप देखिए वेरिएबल सेम है तो पावर्स ऐड कर दीजिए. 2 हो गया और यहाँ 1, सो 2 + 1 इट्स 3. 12x क्यूब, ये हो गया आंसर. हियर अगेन 3mn इंटू 4np. मल्टीप्लाई कीजिए. पहले आप नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे. 3 4s are 12. और अब आप देखिए क्या कोई वेरिएबल सेम है? n इज सेम हियर इन दिस केस एंड दिस केस, तो इनकी पावर्स तो ऐड हो जाएंगी. m और p इनका कोई पेयर नहीं है, ये एज इट इज़ आ जाएंगे. सो वी राइट हियर m, देन n की पावर हो जाएगी 1 + 1 2, और ये साथ में आ गया p. लेट मी जस्ट ब्रिंग इट हियर. आई होप यू आर एबल टू सी. 12mn स्क्वायर p. ठीक है, n यहाँ पर दोनों ही टर्म्स में है तो उनकी पावर्स तो ऐड हो गई n की, और m और p सिंगल सिंगल हैं तो एज इट इज़ आ गए. नाउ वी मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन 3. कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स. नाउ हियर वी हैव वन बिग टेबल फॉर यू. What you have to do? You will see there are monomials in this line also and in this line also. और अब हमें एक एक करके इनको मल्टीप्लाई करना है ऐसे. देखिए आप 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2 2s are 4 और x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 4x स्क्वायर.
ऐसे करके एक एक को हमें आपस में यहाँ पूरी टेबल भरनी है मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है। सो व्हाट डू यू सी, 2x इंटू -5y। तो पहले आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, ये हो गया -10, और x और y दोनों अलग वेरिएबल्स हैं तो दोनों ही आ जाएंगे, -10xy। 3x² और यहाँ पर 2x, तो 3 2 ज़ा 6, और वेरिएबल सेम है x, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2 + 1 ये हो गया पावर 3, 6x³। अब आते हैं यहाँ पर 2x और यहाँ पर -4xy, तो 2 इंटू -4 इट इज़ -8। तो पहले हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर्स को, और फिर हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। x यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों तरफ पावर्स ऐड कर लीजिए। 1 + 1 ये हो गई पावर 2, और अब y तो अकेला ही है, एज इट इज़ आ जाएगा y, ठीक है, ईजी है, समझ रहे हैं ना आप। नेक्स्ट वी हैव 2x इंटू 7x²y, 2 7 ज़ा 14। अब x दोनों ही एक्सप्रेशंस में है तो पावर्स ऐड कीजिए, 2 यहाँ और यहाँ पावर है 1, तो x की पावर हो गई 3, 2 + 1 इज़ 3, और y यहाँ पर नहीं है, सिंगल है, तो एज इट इज़ आ जाएगा। सो 14x³ दिस इज़ द आंसर। नाउ मल्टीप्लाई -9x²y² बाई 2x, -9 इंटू 2 इट इज़ -18। x दोनों ही एक्सप्रेशंस में है, पावर्स ऐड कीजिए, 2 + 1 पावर हो गई 3, और y यहाँ पर नहीं है, सिर्फ इस एक्सप्रेशन में है, ये रहेगा y² एज गिवन इन दिस एक्सप्रेशन। तो इस तरह से फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई है। आप वीडियो पॉज करके पहले ये टेबल खुद भरिए और फिर आप देखिए कि क्या आंसर्स आ रहे हैं आपके, और या मैच हो रहे हैं कि नहीं, सही है या नहीं। -5y इंटू 2x इट विल बी -5 2 ज़ा 10, एंड देन y और x दोनों अलग अलग हैं तो पावर्स ऐड नहीं होंगी, दोनों ही लिखने में आएंगे, ठीक है। -5y -5y, -5 इंटू -5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं एक बार, -5 इंटू -5। ये केस हो गया जहाँ दोनों ही नेगेटिव हैं, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 5 5 ज़ा क्या हो गया, 25। तो ये आंसर आएगा यहाँ पर 25, और साथ में y की पावर ऐड होगी, दोनों तरफ वेरिएबल सेम है, y² हो जाएगा। गेटिंग इट, ये आपके लिए किया हुआ है। -5 इंटू 3 इट्स -15, और फिर y इंटू x² इट इज़ x²y, ठीक है। देन नेक्स्ट -5 और यहाँ से -4, इट विल बी अगेन माइनस माइनस प्लस, 5 4 ज़ा 20, तो नंबर आ गया 20। वेरिएबल्स देखते हैं, x दोनों में नहीं है तो ऐसे ही आ जाएगा, y दोनों में है, पावर्स को ऐड कीजिए, 1 + 1 इट विल बी 2, सो y², ठीक है। नेक्स्ट 7x²y -5y, एक ही नेगेटिव है तो यहाँ आएगा -7 5 ज़ा 35। वेरिएबल्स को देखिए, x उसी में है, यहाँ पर नहीं है, तो x² आएगा, और फिर y दोनों में है तो पावर्स ऐड कर लीजिए, y इंटू वाई इट विल बी y², पावर ऐड होके 2 हो गई, 1 + 1 इज़ 2, सो इट इज़ -35 x² y², क्लियर। देन वी हैव -5y इंटू -9 x² y², दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 9 ज़ा 45, सो वी राइट हियर 45, एंड देन x² सिर्फ इसी में है, यहाँ नहीं है तो एज इट इज़ आएगा, और फिर y दोनों ही टर्म्स में है, y² और y, पावर्स को ऐड कर लीजिए, 2 + 1 क्या हो जाएगा, इट विल बी 3, सो आई राइट इट हियर 3 नाउ डायरेक्टली। So the answer is 45 x² y³. Getting it? Similarly, we will have to fill up this table in the bottom also. 3x² को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, 3 2 ज़ा 6, x की पावर कितनी हो गई, 2 + 1 इट इज़ 3। देन 3x² इंटू -5y, 3 - 5 इट इज़ -15, x दोनों में नहीं है तो x² और y भी दोनों में नहीं है, कोई पावर्स ऐड नहीं होंगी, वी विल राइट इट एज y हियर, -15 x² y। देन 3x² को मल्टीप्लाई करेंगे 3x² से, 3 3 ज़ा 9, वेरिएबल सेम है, ऐड द पावर्स, 2 + 2 इट विल बी 4, तो हमें मिलेगा 9x⁴। हियर मल्टीप्लाई 3x² बाय -4xy, बताइए 3 इंटू -4 इट इज़ -12, x दोनों में है तो पावर्स ऐड कीजिए, 2 + 1 x⁻³ हो गया, और y सिंगल है सो इट विल बी y हियर, -12 x³ y। देन मल्टीप्लाई 7x² y बाय 3x², 7 3 ज़ा 21, x की पावर्स ऐड होंगी, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, x⁻⁴,
और y विल बी एज इट इज़, क्योंकि y के साथ यहाँ और कोई y नहीं है जिससे उसकी पावर ऐड की जाए. नेक्स्ट वी हैव -9 इंटू 3 -27 एंड देन x स्क्वायर ये हो गया पावर 4 2 + 2 और फिर y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा. कंप्लीटेड. देन नेक्स्ट हियर -4xy इंटू 2x. -4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, -8 हो गया, x इंटू x हो गया x स्क्वायर और साथ में y, क्योंकि y सिंगल है तो ऐसे ही आएगा. देन -4xy को मल्टीप्लाई करेंगे -5y से, तो अगेन दोनों ही नेगेटिव है, आंसर पॉजिटिव हो जाएगा. -4 इंटू -5 इट विल बी +20 और 20 अगेन हियर. देन x इंटू x, नो x इज देयर, सो x तो ऐसे ही आएगा. y इंटू y विल बी y स्क्वायर. ठीक है, पावर्स ऐड कर दी. सेम वेरिएबल है, पावर ऐड करनी है. सेम वेरिएबल नहीं है तो दोनों को ही लिख लीजिए बिना पावर ऐड किए. हियर अगेन -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो -12 x एंड x स्क्वायर इट विल बिकम x क्यूब और ये वाला y भी आएगा यहाँ पर, सो -12 x क्यूब y. गॉट इट. देन वी विल मल्टीप्लाई -4xy बाय -4xy. -4 इंटू -4 बताइए क्या हो गया, 16. माइनस माइनस तो हो गया आपका प्लस, 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ आएगा 16 और फिर x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई विल बी वाई स्क्वायर. याद रखिएगा x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर. कैसे अभी हमने डिस्कस किया ही है. नेक्स्ट इज हियर -4 एंड हियर 7, सो -28 x और यहाँ पे x स्क्वायर, x की पावर हो गई 3 x क्यूब, y एंड y स्क्वायर, पावर्स ऐड कर दी y स्क्वायर, सो -28 x क्यूब y स्क्वायर. गेटिंग इट. देन -4xy इंटू -9 x स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 9 ज़ा 36. x की पावर्स ऐड कीजिए, 1 यहाँ है 2 यहाँ है, ये हो गया x क्यूब. y की पावर्स ऐड कीजिए, 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, 1 + 2 इट्स 3, सो 36 x क्यूब y क्यूब. नेक्स्ट वी हैव 7x स्क्वायर y एंड 2x, 7 2 ज़ा 14. x की पावर्स को आप ऐड कीजिए, 2 + 1 ये हो गया 3 और y तो सिंगल है ऐसे ही आ जाएगा. 7x स्क्वायर y इंटू -5y, 7 इंटू -5 इट्स -35 और फिर x तो यहाँ पर ही है, x स्क्वायर रहेगा, y दोनों केसेस में है, पावर्स ऐड कीजिए, 1 + 1 इट इज़ 2 एंड -35 x स्क्वायर y स्क्वायर. देन 3x स्क्वायर एंड 7x स्क्वायर y, 3 7 ज़ा 21, दोनों में ही x है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर्स ऐड कीजिए, 2 + 2 हो गया x रेज़ टू पावर 4 और y यहाँ पर सिंगल ही है, एज इट इज़ आ जाएगा. देन -4xy 7x स्क्वायर y, -4 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -28 और फिर x वाले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है पावर, वहाँ 1 है तो 2 + 1 x रेज़ टू पावर 3. फिर y वाले आपस में लेंगे, यहाँ पावर है 1 और यहाँ भी पावर है 1, तो ये हो गया 1 + 1 y रेज़ टू पावर 2. क्लियर. देन 7x स्क्वायर y को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7x स्क्वायर y से ही, 7 7 ज़ा 49, दोनों में x है तो 2 + 2 पावर्स ऐड हो गई, x रेज़ टू पावर 4 और y इंटू y पावर्स ऐड हो गई, 1 + 1 y स्क्वायर, सो 49 x रेज़ टू पावर 4 y स्क्वायर. गेटिंग इट. यहाँ ये भी ध्यान दीजिए कि कैसे इनको हम बोल रहे हैं, रीड आउट कैसे कर रहे हैं. देन हियर 7 इंटू -9 इट इज़ -63, x की पावर्स ऐड कीजिए, 2 + 2 4 हो गई, x रेज़ टू पावर 4 और y की पावर्स ऐड होंगी, यहाँ 2 है यहाँ पर 1 है, तो ये हो गई y रेज़ टू पावर 3 और y क्यूब, सो -63 x रेज़ टू पावर 4 y क्यूब. ठीक है, चेक कर लीजिए अपने अपने आंसर सही हैं कि नहीं. हियर -9 x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू 2x, तो -9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -18. अब x मल्टीप्लाई कीजिए, 2 है यहाँ 1 है पावर, तो x क्यूब हो गया और y यहाँ पर नहीं है, सिर्फ इसी एक्सप्रेशन में है, तो एज इट इज़ आ जाएगा y स्क्वायर. देन -9x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू -5y, -9 इंटू -5 इट इज़ 45, माइनस माइनस हो गया प्लस, देखिए आप ये क्या हो गया +45 और फिर यहाँ पर x को देखिए आप, x तो इसी में है वहाँ पर नहीं है, ऐसे ही रहेगा x स्क्वायर. y दोनों ही केस में है, यहाँ y स्क्वायर है यहाँ y है, तो 2 + 1 y क्यूब.
गेटिंग इट। फिर आप देखिए 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 इंटू -9 इट विल बी -27। x दोनों ही एक्सप्रेशंस में है, एड अप द पावर्स, 2 + 2 4, सो x रेज टू पावर 4। और फिर y स्क्वायर यहाँ तो है, वहाँ पर नहीं है, तो एज इट इज़ रहेगा y स्क्वायर। देन मल्टीप्लाई -9x² y स्क्वायर बाय -4xy। पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, -9 को -4 से किया, क्या आएगा? +36, सो वी राइट 36। फिर हम x को मल्टीप्लाई करेंगे, x² इंटू x, पावर्स ऐड हो गई, x³ हो गया। फिर हम y मल्टीप्लाई करेंगे, y² इंटू y, पावर्स ऐड हो गई, 2 + 1 वी विल गेट y³। So the answer is 36x³ y³, getting it। और फिर अब हमें मल्टीप्लाई करना है 7x² y और यहाँ से -9x² y²। पहले नंबर्स 7 इंटू -9 इट इज़ -63। फिर x मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ x², वहाँ भी x², तो पावर्स ऐड हो गई, 2 + 2 4, सो x रेज टू पावर 4। और फिर y भी है दोनों तरफ, तो y मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ 2 वहाँ पर 1, सो 2 + 1 इट इज़ 3 y³। सो द आंसर इज -63 x रेज टू पावर 4 y³, गेटिंग इट। और फिर हमारे पास है यहाँ -9x² y² और यहाँ -9x² y²। तो आप फिर से पहले नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे, -9 इंटू -9, बताइए क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 9 81, तो ये हो गया 81। और फिर आप देखिए x मल्टीप्लाई होंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 2 4, सो x रेज टू पावर 4। y मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 2 4 हो जाएगी पावर, सो y रेज टू पावर 4। सो दिस इज 81, x रेज टू पावर 4, y रेज टू पावर 4। In this way we have completed this table. I hope it is very much clear to you, very much. You have practiced this multiplication and now you have become perfect in this. Got it? Next we have question 4. Obtain the volume of rectangular boxes with the following length, breadth and height respectively. फिर से हमें यहाँ पर 3 मोनोमियल्स दिए हैं, जिसमें से पहला तो है लेंथ, दूसरा है ब्रेड्थ और तीसरा है हाइट। किसका? रेक्टेंगुलर बॉक्स का। और अब हमें फाइंड आउट करनी है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, इट इज़ लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो एक्चुअली हमें ये तीनों मोनोमियल्स मल्टीप्लाई करने हैं, 5a इंटू 3a² इंटू 7a रेज टू पावर 4। ठीक है, नाउ फर्स्ट वी टेक अप द नंबर्स, 5 इंटू 3 इंटू 7, इनको एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम a's को एक साथ लेते हैं, a इंटू a² इंटू a रेज टू पावर 4। बताइए क्या हो गया ये? 7 3 21 एंड 21 इंटू 5 इट इज़ 105। और यहाँ पर a की पावर बताइए क्या होगी? यहाँ पावर है 1, फिर ये +2 +4, पावर्स को हम ऐड कर देते हैं क्योंकि हमारा वेरिएबल सेम है। ठीक है, सो दिस विल बी 105 a रेज टू पावर 7, 4 + 2 is 6 + 1 7, 105 a raised to power 7 cubic units. This will be the volume of the rectangular box here. Next we have one more part for this, 2p, 4q and 8r. Again we have to find the volume. Again write down the formula, length into breadth into height. Length is given as 2p, then 4q, then 8r. ये पहले हम कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4 इंटू 8 और फिर हम लेंगे p इंटू q इंटू r. दिस विल बी 2 4 8, 8 8 64. अब बताइए क्या यहाँ पर पावर्स ऐड होंगी या नहीं? बिल्कुल नहीं। यहाँ आप देखेंगे वेरिएबल्स अलग अलग हैं, वेरिएबल सेम होता है तभी पावर्स ऐड होती हैं, वेरिएबल अलग अलग हैं तो एज इट इज़ हम तीनों को ही लिखेंगे। सो वी राइट हियर p q r. ये हो गई आपकी वॉल्यूम। नेक्स्ट वी हैव वन मोर. Here again we have to find the volume. Again it is length into breadth into height. x y length हो गई, 2x² y ये हो गई breadth and then 2xy². This is your height. First we take the numbers. यहाँ कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, 1 इंटू 2 इंटू 2. फिर आप लेंगे x, एक्सेस को एक साथ ले लीजिए, x, x²
और फिर x, ठीक है। यहाँ से x लिया, यहाँ से x स्क्वायर लिया और यहाँ से x लिया। अब हम लेंगे सारे y's, so here we have y, ठीक है, then again we have y and then we have y square। देखिए आप कहाँ से लिया, ये y और ये y स्क्वायर। बस अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, देन फॉर x एड अप द पावर्स, क्योंकि ये सेम वेरिएबल है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी पावर्स एड अप कर सकते हैं। 1 + 2 + 1, ये हो गई x रेज़ टू पावर 4। और इसी तरह से यहाँ पर वेरिएबल सेम है इन तीनों में, तो हम पावर्स ऐड कर सकते हैं। 1 + 1 + 2, अगेन वी हैव y रेज़ टू पावर 4 and this is the volume in this case. Next we have question same with fourth part, we have to find the volume. Volume will be given as length into breadth into height. Length is given as a, breadth is 2b and height is 3c. Multiply. First we take the numbers 2 into 3 and then we take the variables a, b and c. 2 3 ज़ा 6। अब बताइए क्या पावर्स ऐड होंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सेम नहीं है, सो वी विल नॉट ऐड द पावर्स। दिस विल बी रिटन एज ए बी सी, तीनों ही वेरिएबल्स को हम लिखेंगे। गेटिंग इट? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 मोनोमियल्स। प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? अब कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि प्रोडक्ट से हमें क्या करना है। तो प्रोडक्ट मतलब हमें तीनों ही मोनोमियल्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। मेक इट क्लियर। सो फॉर प्रोडक्ट this will be equal to xy into yz into zx। अब सेम जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। x इंटू एक्स आप देख रहे हैं यहाँ से, y भी आप देख रहे हैं 2 बार आ रहा है और z भी आप देख रहे हैं 2 बार आ रहा है। यू कैन स्किप दिस स्टेप इफ़ यू कैन राइट इट डायरेक्टली। व्हाट डू यू सी? x स्क्वायर हो गया, x इंटू एक्स, y square and then z square, y into y is y square, z into z is z square. So this is the product of the 3 monomials. We take one more. Here you have to find the product again. A into minus a square into a cube. अब आप देखिए यहाँ पर ये माइनस भी आ रहा है। हम अगर नंबर्स लें तो हमारे नंबर्स हो रहे हैं 1 into -1 into 1, यहाँ पर 1, यहाँ -1, यहाँ पर 1, तो माइनस तो आएगा ही, प्रोडक्ट करेंगे तो -1 तो आएगा ही और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ माइनस लिखेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। नाउ वी राइट a रेज़ टू पावर व्हाट? यू विल सी दैट द वेरिएबल इज सेम, तो पावर्स को ऐड कर लीजिए। 3 + 2 is 5, 5 + 1 is 6, so it is -a raised to power 6. Very easy, isn't it? Then we have to find the product again. This is 2 into 4y into 8y square into 16y cube। तो यहाँ पहले हम नंबर्स ले लेते हैं 2, 4, 8 एंड 16, ठीक है। और फिर हम y's लेंगे एक साथ, y स्क्वायर y क्यूब। मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए आप यहाँ पर 2 8 ज़ा 16, 16 इंटू 16, 16 स्क्वायर इज़ 256, तो 256 इंटू 4 हो गया यहाँ पर। और ये y की पावर देखिए कितनी हो गई, सेम वेरिएबल है तो पावर्स ऐड अप होंगी। 3 + 2 is 5, 5 + 1 is 6। नाउ मल्टीप्लाई, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरेट, it will be 22, 2 carat and here we will have 10. So 1024 y raised to power 6. Getting it? Then we have this one. Again we have to find the product. A into 2b into 3c into 6abc. Again first we take the numbers. Here we have 1, so no need to write it. 2 into 3 into 6. Then we can multiply a, then we have b here, then c and again we have a b c, ठीक है। a b c यहाँ से भी मिल रहा है और यहाँ से भी मिल रहा है। Multiply the numbers, 2 3 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36. Getting it? Now what do you see? A is coming up 2 times, so it will become a square. B is coming up 2 times, so it will become b square, and c is coming up 2 times, so it will become c square. So the product is 36 a square b square c square. Very easy, isn't it? यहाँ पर हमने पावर्स ऐड कर ली हैं सेम वेरिएबल की, a तो पावर्स ऐड की 1 + 1 it's 2, so a square,
ऐसे ही b square, ऐसे ही c square. We have one more. Here again we have to find the product. m into minus mn into mnp. देखिए अब आप यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें नंबर्स को तो हमें माइनस मिलेगा, माइनस, और फिर अब आप m को लीजिए, m और m, 3 बार m आ रहा है, देखिए 1 2 एंड 3, फिर आप n लें तो n कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स, और p आ रहा है. हमने तीनों m एक साथ लिख लिए, n एक साथ लिख लिए, और फिर p सिंगल है अलग लिख दिया. नाउ दिस विल बी माइनस m रेज टू पावर 3, पावर्स ऐड कीजिए 1 2 3 तो m क्यूब हो गया, n स्क्वायर हो जाएगा, और फिर p माइनस m क्यूब n स्क्वायर p. गेटिंग इट? यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी. इफ़ सपोज वी हैव 3 मोनोमियल्स, ऑल ऑफ देम विद नेगेटिव साइन. सपोज वी हैव माइनस 3x इंटू माइनस 4x इंटू से माइनस 5x. ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, तीनों ही नेगेटिव हैं. तो ऐसे केस में साइन का कैसे डिसीजन लेंगे आप? माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और फिर प्लस इंटू माइनस आपका आंसर आएगा माइनस में. समझ रहे हैं? अगर आप पहले 2 मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस से आपको साइन क्या मिलेगा, प्लस, और फिर प्लस इंटू माइनस आप करेंगे तो माइनस आएगा. सो माइनस, और अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, और x क्यूब आंसर आ जाएगा. तो यहाँ कहने की बात ये है कि अगर ये माइनस साइन जो है ये इवन टाइम्स आ रहा है तब तो आपका ये बन जाएगा पॉजिटिव, और अगर माइनस साइन आ रहा है आपका ऑड टाइम्स तो ये रहेगा माइनस में. देखिए ऑड टाइम्स आ रहा है, 1 2 3, 3 टाइम्स आ रहा है, ऑड है तो इसलिए ये रहेगा नेगेटिव. आप जब चैप्टर 12 पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स इन पावर्स, उसमें आप देखेंगे कि -1 की पावर अगर इवन होती है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, +1, और अगर -1 की पावर ऑड होती है तो ये नेगेटिव ही रहता है, -1. तो पावर कितनी है इस पर ध्यान दीजिए. 3 बार आ रहा है तो पावर माइनस की कितनी हो गई, 3 हो गई ना. 3 बार आ रहा है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, तो ये नेगेटिव में आएगा आंसर. और अगर ये 2 बार माइनस होता, देखिए आप, अगर हमारा होता -3x इंटू -4x और फिर इंटू 5x, 2 ही बार अगर माइनस आ रहा है तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, आपका आंसर आता प्लस में 60x क्यूब. माइनस माइनस प्लस हो जाता. ठीक है, सो दिस इज important for you. With this we complete exercise 9.2 also, and we have learned how to multiply 2 or more monomials. In our further class we will take up the topic further. Till then, goodbye.